Good morning, students. Up to last class, we were discussing about the food chain, and next portion is the food chain. In case of the food chain, we know well all the animals and plants, you can say all organisms, living organisms, depend upon one another to get their food, directly or indirectly. किसी भी एक कोई भी एक ऑर्गेनिज्म बच्चों अगर हमारी अर्थ से वाइप आउट होती है तो इट क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इट इज थ्रीट टू अस ऑल्सो वी विल हैव टू फेस consequences of it in future, right? So all the organisms directly or indirectly depend upon one another. Plants are known as producers. All the food chains start from the plants. Food chain depict to the how organisms depend upon other organisms to get their food. It shows eating and being eaten. It shows eating and being eaten. खाया और खाया जाना. It is an interrelationship between eating and being eaten. हम खा रहे हैं, हमको भी कोई और खाए, हमको भी कोई और खाए. दिस इज द ईटिंग एंड बीइंग ईटन रिलेशनशिप. बच्चों, अब तुम लोग कहोगे, यू विल से दैट सर टाइगर लॉयन इनको तो कोई खाता ही नहीं. देन व्हाट विल हैपन विद देम? आफ्टर सर्टेन टाइम they will die. When they will die after their death, when they will die after their death, उनकी डेथ के बाद क्या होगा? उनकी डेड बॉडी, their dead body lie on the ground. Now a number of birds, other animals which feed upon the flesh of dead organisms, flesh of dead animals, they will come there. वल्चर वगैरह आ जाएंगे, हायना आ जाएगा जो कि डेड एनिमल्स का फ्लेश खाता है, क्रो आ जाएंगे तो वो उनके फ्लेश को खा पी के खत्म कर देंगे. अब क्या होगा? देर आर डेड रिमेन स्मॉल पीसेस. बच्चों यहां पर ध्यान रखें, the animals feed upon flesh of other animals, flesh of other dead animals. The animals which feed upon flesh of other dead animals feed upon flesh of other dead animals, flesh of other dead animals. जो जो दूसरे डेड एनिमल्स हैं उनके फ्लैश को ये खाना चालू करते हैं. दे ईट फ्लैश ऑफ अदर डेड एनिमल्स आर नोन एज स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स, vulture, hyena, these are the scavengers. Got it? So जब ये खा चुके होंगे, जब ये खा चुके होंगे, नहीं बियर हमारा स्कैवेंजर नहीं है बच्चों. जब ये खा चुके होंगे तो क्या होगा? देर आर डेड रिमेन पीस ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन दी सॉइल. अब यहां पर कौन आएंगे बच्चों? हमारे डीकंपोजर. डीकंपोजर, there are these are the decomposers. And decomposers, the organisms which decompose. Decompose मतलब break down कर देना. The organisms which break down the dead organic matter. The organisms which break down the dead organic matter are known as decomposers. The organisms which break down the
dead organic matter known as decomposers. Got it? तो ये बच्चों decomposers and decomposers, they decay the organic matter. They help in decay of the organic matter. Decay, what is the organic matter? Carbohydrate है. क्या है बच्चों यहाँ पर? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स है, प्रोटीन्स है और लिपिड्स है. सॉरी, carbohydrate, fats, protein and vitamins. These are the organic matter. But these organic matter will decompose. कार्बोनेट ब्रेक होगा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी. फेट ब्रेक डाउन हुआ, अगेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रिलीज हो गई. प्रोटीन ब्रेक डाउन हुआ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विल रिलीज ओवर हियर एंड phosphorus also. In this way, sulfur. In this way, various minerals will, which is present in their body of the complex organisms, will mix into the soil and increase the soil fertility. ये सब soil में मिल जाएंगे और they will increase the soil fertility. They will act as a manure. They will act as a manure. ये किसकी तरह बिहेव करेंगे बच्चों? मैन्योर की तरह. And increase the soil fertility. और soil fertility improve करेंगे. Which organisms? Which are the examples of decomposers? Bacteria and fungus. Bacteria and fungi are the basic examples of the decomposers. Basic examples of the decomposers. देखो, try to understand the concept. Actually, the food chain is the diagrammatic representation of the ideal condition. Of the ideal condition, one organism feed upon another organism. It is only for explanation. It is only for explanation. But what happen in actual life? आप लोग भिंडी की सब्जी भी खाते होंगे, आलू मटर भी खाते होंगे, पत्ता गोभी भी खाते होंगे, cabbage. We eat different kind of foods, different kind of vegetables. एक ही राइस भी अच्छा लगता है, पुलाव वगैरह, लेकिन अगर एक ही टाइप का फूड अगर डेली दिया जाए तो हम लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं. We can't eat, we can't comfortable with only single kind of food. We need multiple choice. We need the multiple choice. आज मुझे दाल खाना है, आज मुझे कुछ और सब्जी खाना है. So these are the choice. These are the choice. लेकिन हमने तो फिक्स कर दिया फूड चेन में. केवल इंसेक्ट केवल घास खाएगा. इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट केवल एक फ्रॉग ही खाएगा बस. कोई जरूरी है फ्रॉग ही खाए? बटरफ्लाई है, हमारे यहाँ पर खूब घूमती है. फ्रॉग आया, फ्रॉग खा लिया. फ्रॉग को मौका मिला, फ्रॉग ने खा लिया. लीजर्ड को मौका मिला, लीजर्ड ने खा लिया. हमारे बर्ड्स को मौका मिला, बर्ड्स ने भी खा लिया. बेचारा एक इंसेक्ट हुआ, इंसेक्ट को खाने वाले इतने सारे हुए, टेस्ट चेंज करने वाले. फ्रॉग कहता है नहीं, आज तो बटरफ्लाई खाऊंगा, आज तो इस पर्टिकुलर इंसेक्ट को खाऊंगा. These are the choice. Then it make the life easier. जैसे स्नेक है, स्नेक हमने कहा दी
frog is eaten by the snake. अब स्नेक को अगर फ्रॉग नहीं मिला तो क्या भूखा रहेगा? भूखा रहेगा? नो. स्नेक हैविंग मल्टीपल चॉइस, मोर देन वन चॉइस. कभी फ्रॉग नहीं मिला, रेट मिल गया, रेट को खा लिया. कभी कुछ और छोटा मोटा एनिमल घूमता हुआ दिख गया, उसको खा लिया. तो कभी लीजर्ड दिख गई, लीजर्ड को खा लिया. तो बच्चों, देयर इज अ मल्टीपल चॉइस. देयर इज अ मल्टीपल चॉइस. और जैसे मल्टीपल चॉइस आ गई तो क्या हुआ? अब फूड चेन क्या एक सिंगल चेन रही? नो, देयर इज नॉट सिंगल चेन. पिकॉक है, पिकॉक कैन ईट दी स्नेक. क्या पिकॉक स्नेक को ही खाएगा? पिकॉक को कुछ और खाने को नहीं मिलेगा? मिलेगा. तो बच्चों, इट मेक दी कॉम्प्लिकेटेड फूड चेन. इट मेक दी फूड चेन मोर कॉम्प्लिकेटेड. अब ऐसे तो बहुत सारी फूड चेन हो जाएंगी. और ये जो चेन इंटरलिंक्ड चेन फूड चेन्स, ये जो इंटरलिंक्ड फूड चेन हो गया, दिस इज नोन एज फूड वेब. सो फूड वेब. तो यहां पर लिख दिया जाए, इन रियल सिनेरियो, या अपनी बुक में देख लो, इन रियल लाइफ, जो कर रहे, इन रियल लाइफ the food chain, the a number of food chain group. In real life, a number of food chains, a number of food chains are interlinked. A number of food chains are interlinked. This interlinked food chain make a food web. This interlinkage between the food chain is called as food web. हो गया बच्चों फूड वेब का कॉन्सेप्ट क्लियर? बियर है, बियर, यस सर. बियर, भालू. बियर कैन ईट grasses, it can feed upon the plants, it can feed upon also other animals. That's why it is known as omnivore. The animals which feed upon flesh as well as plants are known as omnivores. Now we are going to discuss the last portion of this chapter, that is the conservation of forest. बच्चों, what do you mean by, there are certain definitions come over here. There are certain definitions come over here. Number one definition, deforestation. Deforestation. Destruction of forests. Destruction of forests at large scale. Destruction of forests at large scale is called as deforestation. Destruction of forest at large scale is known as deforestation. फॉरेस्ट का लार्ज स्केल पर डिस्ट्रॉय होना, दिस इज कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन. Deforestation, cutting down of forest. We can cut the forest at large scale to obtain, to over exploitation, to obtain timber, to get the earth, the land for the, to acquire land for construction of building houses, for construction of the road, right?
So these are the different kind of the regions. That's why the forests are destroyed time by time. This is deforestation. How can we? But the destruction of the forest not only threat for animals but also threat for human beings. अभी देखो ऑस्ट्रेलिया का केस देखो, लास्ट ईयर की बात है. इन केस ऑफ द ऑस्ट्रेलिया अबाउट 20,000 ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 20,000 केमल्स को शूट करने का ऑर्डर दे दिया और शूट कर दिया. वाई? एक्चुअली क्या हो बच्चों, वहां पर हुआ फॉरेस्ट फायर और उस फॉरेस्ट फायर की वजह से फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट गेट डिस्ट्रॉयड. और जब फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गए तो वहां से जो केमल थे वो केमल जो उनकी कॉलोनीज थी उन कॉलोनीज में आने लग गए इन सर्च ऑफ द फूड, इन सर्च ऑफ द वाटर. और जैसे ही 20 अगर 2-4 केमल आए कोई टेंशन नहीं है, पानी दे दो, कोई गाय हमारे आती है. लेकिन इतनी लार्ज नंबर में जैसे केमल वहां पर आके कॉलोनीज में एंटर हो गए, दे बिकम अग्रेसिव और लोगों को उन्होंने परेशान करना स्टार्ट कर दिया. अल्टीमेटली द गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ordered to shoot them immediately. So look here, what, how can we conserve the forest? Number one, conserve the forest. तो क्या किया जाए? नंबर वन, afforestation. Afforestation. Planting more and more trees, planting more and more trees is called as afforestation, right? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए और जो फॉरेस्ट खत्म हो गए हैं उन जगहों पर आपस ट्रीज लगाकर छोड़ दिया जाए एज अ फॉरेस्ट. सेकंड वन, प्रिवेंशन ऑफ द फॉरेस्ट फायर. प्रिवेंशन ऑफ फॉरेस्ट फायर, जब भी हम फॉरेस्ट में घूमने जाएं, विजिट करने जाएं, घूमने जाएं, अवॉइड कैंप फायर. कैंप फायर को अवॉइड किया जाए. जो भी आसपास की कॉलोनीज वाले हैं उनको बोला जाए कि भैया आग लगानी है, अगर तुमने आग लगाए हैं, अगर कोई जलती हुई चीज फॉरेस्ट में ना छोड़े, टू अवॉइड द फॉरेस्ट फायर. गॉट इट? क्योंकि सूखी पत्तियां होती हैं, ड्राइड लीव्स, इट कॉज दी फॉरेस्ट फायर. 3-4 साल पहले जब लोग शिमला से वापस आ रहे थे तो हमने देखा यहाँ पर अपने वहां से जब वापस आए थे हिमाचल के हिमाचल और पंजाब के, हरियाणा के बॉर्डर पर इतनी बच्चों इतना बड़े बड़े फॉरेस्ट, सबके सब आग लगी हुई थी बच्चों. इट वॉज फॉर कंप्लीट फॉरेस्ट फायर. It destroyed large number of the animals, trees, not only trees and plants, but also all the animals. बेचारे animals थे जिंदे जल के मर गए. So we should take action against to prevent the forest fire. Next one, grazing किया जाए, कोई टेंशन नहीं. We need fodder to feed our kettles, but overgrazing should be avoided. Overgrazing ज्यादा, एक इतना सा था फॉरेस्ट है, इतने सारे एनिमल्स को लाकर वहां छोड़ दिया तो क्या करेंगे, फॉरेस्ट को खा पी के बर्बाद कर देंगे. तो अवॉइड ओवरग्रेजिंग. नेक्स्ट वन, कंजर्वेशन ऑफ द कंजर्वेशन टू कंजर्व कन्वर्जन इनटू कंजर्व्ड फॉरेस्ट. जो फॉरेस्ट है उनको एज अ कंजर्व्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया जाए. कंजर्व्ड फॉरेस्ट, वी कैन डिक्लेयर द फॉरेस्ट एज अ sanctuaries,
as a national park. And if we declare these national parks, sanctuaries, so now people can enter there, but with responsibility, with some strict provisions. They should not destroy our wild animals, wild plants. Next one, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बच्चों, एक मैक्सिको का अच्छा एग्जांपल अभी थोड़े दिन पहले टीवी पर मैं देख रहा था। उन्होंने, ठीक है, वी नीड टिम्बर, टिम्बर चाहिए सही, हमको फॉरेस्ट कट करने ही पड़ेंगे। उन्होंने क्या किया, what they did, adopted the practice। उन्होंने क्या किया, कुछ एरिया बना दिया, एक कॉन्टेक्ट, जो एरिया, जो फॉरेस्ट था वो एक कंपनी को उन्होंने कॉन्टेक्ट में दे दिया। अब कंपनी क्या कर दी, कंपनी ने क्या किया, जैसे सपोज दिस, फ्रॉम दिस साइड 500 पेड़ उन्होंने काट लिए। अभी 500 पेड़ इधर के काट लिए, अब वो चले जाएंगे दूसरे साइड में। इधर 500 पेड़, जो जिस प्लेस से 500 पेड़ काटे थे उस प्लेस पर दूसरे नए पेड़ लगा दिए। सारे पेड़ एक साथ डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, उनके बीच में से जो ट्रीज है उनको छोड़ दिया। सपोज करें देयर आर 1000 ट्रीज, उन पे से 100 ट्रीज कट कर लिया, एक एक को छोड़ते हुए, बीच में छोड़ते हुए, तो उनके जैसे सीड्स नीचे गिरेंगे, दे विल ग्रो द न्यू फॉरेस्ट। In the same way, they will change, go to other region. They will not completely destroy the forest. पूरा forest को destroy नहीं करेंगे. They will cut the trees. अब कई सालों तक वो उस जगह नहीं जाएंगे। In this way, it is a planned cutting, sustainable development, using of the resources, but for, keep in mind, for future use of such kind of the products, so that the future generation can also enjoy these forest products. ठीक है बच्चों, in this way we have finished this chapter